simple success formula for Trump to take care of criminal minded desis. अमेरिका में परमजीत, हरजीत, निमिषा जलवानी, वो जो 2 गुजरातनों के मैंने वीडियोस दिखाए हैं, रुस्तम, 3-4 मैंने और बहुत सारे इंडियंस के वीडियोस दिखाए हैं जो कि तरह तरह के बैकग्राउंड के वीडियोस दिखाए हैं, राइट। तो ये जो सारे बंदों के वीडियोस दिखाए हैं मैंने आपको, ये सारे के सारे क्रिमिनल माइंड। ट्रम्प इज़ बाहुबली। अब वो आ गया है तो ये तुम्हारे सर ले लेके घूमेगा अपने हाथों में। बाहुबली में होता है ना वो बंदी जो होती है, शिवसेना शिवसेना ये नाम था ना, वो सर लेके घूम रही होती है, बल्लाल देव के बेटे का, ऐसा ही है। तो गाइज मैं सिंपल सक्सेस फार्मूला बना रहा हूँ ट्रम्प जी के लिए, मिस्टर ट्रम्प के लिए और आइस के लिए और इस कंट्री के लॉ के लिए, जो इन्होंने खुद ही, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो इन्फोर्स नहीं कर रहे। पहला लॉ जो है वो है अकम्प्लिस से रिलेटेड, accomplice और एडिंग एंड abetting लाइबिलिटी। ये एक ऐसे लॉज हैं जो कि अमेरिका भी यूज़ नहीं कर रहा, ट्रंप अभी यूज़ नहीं कर रहा, अब इसको करना। एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट होता क्या है, राइट? ये जो लॉज हैं अभी ट्रंप यूज़ नहीं कर रहा। मटीरियल सपोर्ट और रिसोर्सेज स्टैट्यूट्स, कॉन्स्पिरेसी, अभी कॉन्स्पिरेसी के लॉज नहीं है इन्फोर्स किए, अभी तो जो साले हरामजादे सामने सामने क्राइम कर रहे थे उनको पकड़ा गया है। रिको एक्ट्स ये अभी नहीं इन्फोर्स किए ट्रंप ने, सिंपल सक्सेस फार्मूला फॉर ट्रंप, इनको इन्फोर्स करो रिको एक्ट्स को, देखो कितने लोग पकड़े जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग एंड एसेट फॉरफीचर, अभी ये लॉज ने भी किए, अब ये किए जाएंगे। क्रिमिनल स्ट्रीट गैंग एनहांसमेंट। ऑलराइट गाइस, मैं आज आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ। This actually, let's make this in English from here on. So this is the simple success formula for Trump and ICE and American government. ठीक है? So the whole idea is how America can actually catch not just the criminals but also a lot of other people who commit this, who basically abet the crime. So there are so many different types, and I will explain how those work, and I want Trump to enforce those. Yes, Trump must enforce these laws because that's how this country will be cleaned of all these criminal minded people. I made videos about Paramjeet Singh, Harjeet Singh, Nimisha Jalwani, and 2 Gujarati ladies doing shoplifting, and there are 4 people from different parts of India, committing, crimes against minors. These guys, a lot of these guys are not even afraid of the law here. Right? I also showed you videos around about littering. People are littering the streets and blatantly doing wrong things and pilfering the holiday gifts and things like that. All these are crimes, right? But they are catching only those people who are committing the crime. There are a lot of other things which come into play in America through which they basically target the system also behind those crimes, and the systematic nature of those crimes starts to. So basically the whole systematic, the whole way of operating systematically also gets targeted by the also gets punished by the police. So these are the things. One is, first is accomplice or aiding and abetting liability. देखिए क्या, what happens is anyone who aids, abets, counsels, commands, induces or procures a crime can be charged as a principal even if they did not commit the act directly. So anybody who helps, for example, let's say there is a robbery and then you drive the getaway car. So you are basically, you did not do the robbery, but you are an accomplice. So these people will also get the punishment. So this is something that, like for example, illegal banda. So there is another one, right? So a person who helps them come into the country, get this thing, get the benefit, get this benefit. For example, these asylum seekers, they are basically lying on their applications. Mr. Trump, you know that, right? If you don't know, now you know. They are all lying on their application. There is no problem in India. They basically get fake FIR done and then they produce it here. So the lawyer, he is the one who is basically the accomplice. He is the aiding and abetting. Anybody who brought them here, anybody who was here to help them, just as they landed, all those guys are accomplices and they should be punished too. Check asylum seekers, lawyers. They must be having some lawyer on the application, right? Check that. That is the first guy who has definitely abetted and aided the asylum seeker, right? Accessory after the fact. See, after a crime is committed, then there are people who help in cover up.
they are called as accessory after the fact. एक murder हो गया, they help them clean the blood and all that stuff. These guys are called as accessory after the fact. I'm pretty sure if you look at the stories of all these people, the criminals that you are basically targeting, that you are throwing out of the country, then maybe you may find some other people who basically were accessory after the fact. That means they were helping them after, like the person comes here illegally, then they help them, find the jobs. So things like that. These are all accessory after the fact, or help them like in covering the crime. Basically, let's say, you know, they give them like basically advice, or they do things to basically help them cover their crimes. So these are accessory after the fact, right? Material support or resources statutes, right? Anybody, let's say, who gives money or weapons or training or even services to an organization, to a person, like let's say एक मर्डर करने जाता है, जिसने उसको पिस्तौल बेची, the person who sold him the revolver, the person who gave him the money to go in the bus or to get the taxi, all these guys are basically they give the material support for the crime. So they can be also targeted, and they should be targeted. They should be targeted. Let's say two people agree to commit a crime. They don't commit, but they do overt acts. Okay, these are all real rules in America, because of which America is safe. If people like me come here who are nice to everyone, who want to stay nice to everyone, there is a reason. There is a strict law here. That's the reason everybody stays nice, and I want everybody to be nice with me. When people are not nice, when they say fuck, fuck, fuck in the public, in a party of 20, 30 boys, then I want to tell them that there are laws here protecting person like me. There are the laws here protecting persons like others also from anybody, even me. Even why would I not do these things? Then I would also say fuck, fuck, fuck to people, but I don't do that because I'm nice. Why I'm nice? Because there's a law here. There's a law here. If you don't understand the law, then the law will fuck, fuck, fuck your ma, law will fuck, fuck, fuck your sister, law will fuck, fuck, fuck your papa, law will fuck, fuck, fuck your dada, law will fuck, fuck, fuck your daddy, law will fuck, 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 fuck everybody. And you also, law will fuck, fuck, fuck. Don't say you are not getting the respect that you deserve. Why? You don't deserve any respect because you can shout at people in public. You don't. You're a criminal-minded. You are a criminal-minded person. You don't. You deserve to get this treatment. Okay. Anyway, conspiracy makes it a crime for two or more people to agree to commit a crime. So yeah. So if they agree to commit a crime and do overt acts, let's say they buy a pistol, they basically pistol. So something like that. So that is something. It's an overt act, and then they were basically about to commit that crime. So this is an example. So when they conspire, so there is no conspiracy theory. There is the name of laws. These are the set of laws. These are the names of the set of laws basically. So if people conspire to commit a crime, but they don't commit the crime yet, even they can be incarcerated in this country. This is the legal fabric of this country. Haramjade, समझ अनपढ़ है तू, मुझे पता है. आई नो यू आर अनपढ़, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. आई नो दैट तू एक अनपढ़ आदमी, मुझे पता तू नहीं समझ सकता. चले ये तू जो ड्रामा कर रहा है, डिग्री पकड़ के बैठा हुआ है, मुझे पता है तेरी सारी डिग्री कहाँ से आती है इंडिया में, मुझे बहुत अच्छे से पता है. तो तेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है. तू साले जो तेरे खून में खराबी है ना, वो बोल रही है. इसीलिए मैं खून की बात ज़्यादा करता हूँ. DNA का जो लफड़ा किया ना, उसके कारण तेरे DNA पे जाता हूँ ज़्यादा, क्योंकि तेरी माँ बहन बाप, तेरी माँ बाप बहन सारा जीजा बहन जो सारे इन्वॉल्व हैं, इसलिए मेरे लिए तो ठीक है ना. कहीं तू सोच रहा है कि उन लोगों ने तेरे को हेल्प की थी ना, जब सारा चीज़ें पंगे किए थे. याद रखना, दे कैन ऑल बी टारगेटेड इन दिस कंट्री. हम लोग आराम से रह रहे हैं, किसी से बात नहीं करते, चुपचाप रहते हैं. इसलिए रहते हैं क्योंकि हम सिर्फ नाइस ही नहीं है, हम लॉ अबाइडिंग है. और तू जो इलीगल हरकतें करता जा रहा है ना, तेरे को प्रॉब्लम होगी इससे एक दिन. कहीं तू सोच रहा है कि इससे तू बच जाएगा. ये याद रखना. अगर तू गलत करेगा ना, तो ये सब बहुत सारे लॉज हैं इन प्लेस विच बेसिकली आर देयर टू कीप इन चेक ऑन पीपल ऑन लाइक यू, एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स पीपल लाइक मी हु आर लॉ अबाइडिंग एंड पीसफुल. मैं पीसफुल हूँ भाई, मैं पीसफुल हूँ, बस बता रहा हूँ तेरे को. मैं साफ बता रहा हूँ, मैं पीसफुल गाय. और गाइज, लेट्स कीप द वीडियोज़ ओरिएंटेशन टू. सो बेसिकली गाइज, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मैंने ना कभी न्यू जर्सी के अंदर किसी बंदे को कोई क्राइम करते देखा था, किसी बंदे के अगेंस्ट. तो वो मेरा दोस्त था थोड़ा सा, जिसके अगेंस्ट क्राइम था, तो मैं थोड़ा इसको पर्सनली भी ले लेता हूँ. मैं उसकी बात करता रहता हूँ बीच बीच में, क्योंकि उसने ना, उस बंदे ने फक बोला था भरी पार्टी में, मेरे सामने मेरे दोस्त को बोला है.
तो मेरा दोस्त बेचारा वो तो नाइस था, वो तो आईटी इंजीनियर है, प्रॉपर अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ है, ये साला अनपढ़ सा गंवार हुआ कोई बंदा था, उसने अपनी डीएनए प्रॉब्लम दिखाई थी। तो उसके अंदर थोड़ा सा मैं वो बोलता रहता हूँ कि उसने बोला फक फक फक, तेरे फक करूँगा तो फक करूँगा, ऐसे बोला बिना बात से, कोई लेना नहीं देना नहीं, राइट। तो ये बंदा जो सा है काफ़ी मतलब ये बेचारा तो पढ़ा लिखा था। तो चक्कर ये कि वो पढ़ा लिखा तो था, लेकिन वो कोई डरपोक नहीं था, उसको पता था लॉ क्या है, उसको पता है कि ऐसे नहीं उल्टा सीधा बोल सकते, इवन उल्टा सीधे बोलने का जवाब देना भी ठीक नहीं है। तो उसने ही टुक अ स्टेप बैक एंड देन सारा मतलब कि ये सारी बात है। तो उसका आंसर मैं कभी कभी बीच बीच में दे देता हूँ। ये फंडा है गाइस इसके पीछे। अगर आप लोगों ने इसको इग्नोर करना, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। राजेश का जहाँ जो हुआ सो हुआ, ठीक है ना, बड़ी पुरानी बात है, 12-13 साल हो गया, अभी 2025 चल रहा है, कम से कम 2010 की बात है, तो 15 साल हो गए हैं, राइट। हाँ जी। सो रिको एक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लॉज हैं, बड़े मज़ेदार लॉज हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम, एक बॉस है, क्राइम का बॉस है, उसने ना ऑर्डर किया 10 लोगों जाके इसको या 2 बंदों को जाके मारा उस बंदे को। तो सिर्फ वो 2 बंदों ने क्राइम किया, इसने पिस्तौल भी नहीं दी, उसने कहा जहाँ मर्जी से ले लेना पिस्तौल, उसने पैसे भी नहीं जहाँ मर्जी ले लेना, क्योंकि गैंग के मेंबर हैं उसके, सुनते हैं उसकी। तो जो बंदे ने ऑर्डर दिया ना मारने का, वो भी मतलब कि वो भी अकम्प्लिस नहीं है, क्योंकि अकम्प्लिस तो देखिए समझो इस बात को, अकम्प्लिस हुआ जो उसकी हेल्प कर रहा है, उनकी ये हेल्प तो नहीं कर रहे, ऑर्डर दिया है, समझ रहे हो, वो भी जिम्मेदार है इस कंट्री में, अमेरिका में। तो ट्रम्प साहब ये आपका रिको एक्ट बनाया पूरा अच्छा खासा, रैकेटियरिंग एंड इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम भी दिया था यार मैंने पढ़ा था अभी, चलो रैकेटियरिंग वट एवर, डजंट मैटर क्या नाम है, रिको RICO रिको एक्ट्स हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के करते हैं ना काम, उनके लिए बनाया गया है। तो भाई इनको जरा रगड़ो जरा। मनी लॉन्ड्रिंग एंड एसेट फॉरफीचर, इसमें क्या होता है, राइट, अगर एक बंदा एक क्रिमिनल एक्टिविटी से मनी जनरेट होती है और उसको वो फिर ट्रांसफर करता है, कंसील करता है, इन्वेस्ट करता है। अब क्या कि क्रिमिनल एक्टिविटीज, लेट्स से आपने इलीगल बंदे एम्प्लॉय कर रखे गैस स्टेशन, उससे मनी जनरेट होती है, उसको जो अकाउंटेंट हेल्प करता है उसको वाइट अप करने में, ये भी इलीगल है इस कंट्री में। और भैया एक दिन रगड़े जाओगे, करना बंद कर दो, साले खुले कर रहे हैं जो, मैं देखता हूँ ना यार, साला खुल के चल रहा है साला, साला हम फुद्दू हैं जो साले रूल लॉज को फॉलो करते हैं। साला IRS की कुआरी होती है, पैंट जो बैठे होते हैं लाइन लगा के, चुपचाप ऐसे करके बैठे होते हैं और सब चीज़ों को लीगली एनालाइज करके कर रहे होते हैं। हम बेवकूफ़ लगते हैं तुम्हें? तो गाइस जो खुले में चल रहा है ना, वो इस कंट्री में जो खुले में जो क्राइम चल रहा है ना, उसकी आपको एक्सटेंट नहीं मालूम। मैं सारे इंडिया के लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बात को समझो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम चल रहा है, इतना बड़ा। निमिषा जलवानी जैसे कर रहे हैं शॉपलिफ्टिंग, वो जो गुजराती लड़की पकड़ी गई है उसके जैसे पकड़े गए हैं। मेरे को उसका नाम नहीं पता, सॉरी गाइस, मैं बार बार गुजराती लड़की बोल रहा हूँ, नथिंग इज गुजराती इज हियर। देखिए भैया, वो गुजराती नहीं, वो चोर है मेरे लिए, जो चोर लड़की पकड़ी गई है। पर वो थोड़ा सा बताना कौन सी लड़की चोर, तो लड़कियाँ बहुत सारी हैं, तो बताता हूँ गुजराती लड़की पर गुजराती बहुत सारी हैं। सो या चोर लड़की जो पकड़ी गई है, सो सॉरी अबाउट दैट, आई वुड नेवर टारगेट अ कम्युनिटी, दैट्स नॉट माई वे ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट्स नॉट माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स। बट क्या करूँ, उसके बारे में उसका नाम ही नहीं मिल रहा, मैंने ढूंढा भी थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा ढूंढा, इतना टाइम भी कहाँ होता है यार, कहाँ कर क्या करें। तो मनी लॉन्ड्रिंग का है कि जो बंदा उनके पैसे पूसों को, उनके फाइनेंस को, उनकी अकाउंटेंसी को, उनको ऑपरेट करने में हेल्प करता है, जो उनको क्लीन करता है उसकी डर्टी मनी को, वो भी जिम्मेदार है। ड्रग से पैसे आए, टिपिकली गवर्नमेंट ने बड़े सारे रूल्स बना रखे, मैं तो रूल्स देखता हूँ कि किसी गलत तरीके से पैसे साला यूज़ नहीं हो सकते, यूज़ ही नहीं हो सकते। अगर आप लोगों ने ब्रेकिंग बैड देखा है ना, वो रियल बात है, पैसे यूज़ करना बड़ा मुश्किल है, उसको सिस्टम में कैसे डालेगा। अब बच्चे की फीस देने के पैसे नहीं है, घर में 100 मिलियन कैश पड़ा है जो ड्रग मनी से आया, कैसे डिक्लेयर करे कि ड्रग मनी से पैसे आए हैं, राइट। तो सिंपल सक्सेस फॉर्मूला है फॉर ट्रम्प कि मनी लॉन्ड्रिंग, मनी मूवमेंट्स को इनकी सबकी ट्रैक करो और उससे निकलेगा बहुत कुछ निकलेगा। जितने सारे असैलम सीकर देखो ना, कब पैसा भेजा, कैसे कैसे पैसा भेजा, सारा देखो, निकलेंगे, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, देखना बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, ठीक है ना। क्रिमिनल स्ट्रीट गैंग एनहांसमेंट्स, राइट, या ये थोड़ा सा रिको जैसा सही है, बट ये क्रिमिनल स्ट्रीट गैंग्स पे एप्लीकेबल होता है। मिलजुल के कोई काम करते हैं तो उसको कहते हैं क्रिमिनल स्ट्रीट गैंग एनहांसमेंट। मान लो 5 बंदे थे, मिल के गए, एक ने कुछ भी नहीं किया ना, बस वो साइड पे खड़ा रहा डुबक के, वो भी जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदार है। ये मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या करते देखा है। 5 बंदे मिलके गाड़ी के अंदर दारू पी के चला रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं तू डरपोक है, तुम डरपोक हो। ये अमेरिका के अंदर हो रहा है जी। इन्होंने चंडीगढ़ को, इन्होंने इसको पंचकुला बना रखा है, सैक्रामेंटो को उन्होंने पंचकुला बना रखा है। मैं तो देखता हूँ ना, तो तभी मैं कह रहा हूँ कि लोग ऐसे भी हैं जो डरते ही नहीं, दारू के अंदर दारू पीते हैं और कॉप से चिक चला रहे हैं। भैया मैं ना गलती से गवर्नर बन जाओ तो तुम्हारे को घरों में से घसीट के निकाल दूंगा मैं, तो तुम सोच रहे हो,
ये भी याद रखना, मैं गवर्नर बन भी सकता हूँ, तुम तो अनपढ़ साला, तुम क्या बनोगे, तुम्हें तो पता भी नहीं क्या होता है, तुम तो ये कुछ छोटा मोटा ये सब कर सकते हो, या मैं बन जाऊँगा एक दिन, समझ, याद रखना, बन गया ना तो याद रखना, तो मैं तुम्हें सड़कों पर घसीट दूंगा घरों से निकाल निकाल के, राइट। ये तो बड़ा सिंपल सा बंदा। बाय द क्रिमिनल स्ट्रीट गैंग एनहांसमेंट्स इज दैट इट इज़ कैलिफोर्निया लॉ बेसिकली, ठीक है ना। तो ठीक है ना, इनके ना वैसे वो भी लिखे हुए हैं लॉ नेम भी लिखे हुए हैं मैं तो बताऊँगा आपको, चलो बता ही देता हूँ। एकम्प्लिस और एडिंग एंड अबेटिंग लाइबिलिटी, जो पहले वाला था भाई ट्रंप तुम्हारे लिए स्पेशली, ठीक है। 18 यूएससी नंबर 2 फेडरल स्टैट्यूट, राइट। एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट 18 यूएससी 3, मटेरियल सपोर्ट 18 यूएससी 2339A एंड 2339B, 18 यूएससी 371 कॉन्स्पिरेसी, वो 2339 था, मटेरियल सपोर्ट वाला था, एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट वाला 18 यूएससी 3 था, ठीक है। रिको स्टैट्यूट्स 18 यूएससी 1961 1968, 18 यूएससी 1957 टू 56 टू 57, दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड, ठीक है ना। स्टेट लॉ 186.22 जो कैलिफोर्निया के अंदर है, क्रिमिनल स्ट्रीट गैंग एनहांसमेंट्स। गाइस, तो मिस्टर ट्रंप, मैंने आपको एक पूरा सक्सेस फॉर्मूला दिया है कि कैसे आप ये जो निमिषा जलवानी जैसे हैं ना लोग, और परमजीत जैसे जो लोग हैं, और हरजीत सिंह जैसे लोग हैं जिन्होंने क्राइम किए हैं, कैसे आप इनके आसपास के पूरे सिस्टम को नेस्तनाबूद कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सॉरी मैं भूल गया, मतलब इंग्लिश में हिंदी आ गया, चलो कोई बात नहीं, सारे अपने बंदे तो सारे हिंदी हुई हैं, ट्रम्प साहब को कोई हिंदी इंटरप्रेटर रख लेंगे, उससे सुन लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली गाइस, ये सारे मैंने लीगल आपको फ्रेमवर्क बताए हैं जिससे ट्रंप को अभी इसको इंक्रीज करना चाहिए, इसको इंक्रीज करना चाहिए दायरा। अभी तो ये शोर मचा रहे हैं कि परमजीत सिंह ने सिर्फ 50 पैसे चुराए थे, निमिषा जलवानी ने सिर्फ 1350 रुपये की चोरी की थी, इतना क्या हो गया, माफ़ी तो मांग रही है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं ना। और वो जो लड़की, मैं बार बार नहीं बोल रहा एथनिसिटी वाइज, वो जो लड़की जो जिसने, एक और लड़की जो मैंने शॉपलिफ्टिंग वाली बंदी बताई है, वो कह रही है, वो कह रहे हैं अरे तो थोड़ी सी चोरी है, बेचारी गरीब होगी, राइट। इन सबको अभी तो इन सबको पकड़ा जा रहा है जिन्होंने डायरेक्ट क्राइम किया है। अभी इनके पीछे के पूरे जो सिस्टम्स हैं, जो माइंडसेट्स हैं, जो इनके दिमागों में क्रिमिनल मतलब दिमाग भरा हुआ है, पूरी फैमिलीज के दिमाग में क्राइम भरा हुआ है, और जिनके डीएनए में प्रॉब्लम है ना, डीएनए में जो प्रॉब्लम है ना, ये खुरच के एक आई डोंट नो, अनपढ़ हो तुम लोग तो वैसे, क्रिस्पर से डीएनए होता है टारगेट, तो क्रिस्पर टेक्निक से तुम्हारा डीएनए क्लीन करेंगे, बस टाइम आने दो, बिल्कुल करेंगे। ये अपने दिमाग से निकाल दो, कि डीएनए प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, मुझे मालूम है नहीं हुई है, ये डीएनए प्रॉब्लम ना ऐसे रिजॉल्व नहीं होगी, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये डीएनए क्रिस्पर ट्रीटमेंट से होती है डीएनए प्रॉब्लम रिजॉल्व, ठीक है ना। तो ये जो 7 लॉज हैं मिस्टर ट्रंप, आप यूज़ कर सकते हो अगेंस्ट दोज पीपल जो लोग हरामीगिरी करते हैं यहाँ पे, और ये भी स्टार्ट होंगे, ये मैं अभी प्रेडिक्ट भी कर रहा हूँ। मेरे को तो वैसे लगता है कि ट्रंप भाई साहब जी मेरा वीडियो देखते हैं। अभी तो लाइबिलिटी वाले, कम्प्लिसेस, मटेरियल सपोर्ट वाले होंगे। 50 पैसे का सिक्का किसने दिया था? परमजीत सिंह को। निमिषा जलवानी को आइडिया किसने दिया? टारगेट के अंदर होता है, टारगेट के अंदर कोई बंदा नहीं खड़ा होता। बिल्कुल ट्रंप साहब, मैंने आपको बड़ी सही सी बातें बता रहा हूँ, मैं को स्पेसिफिक चीज़ें बता रहा हूँ, जरा करना जरा, और मुझे थोड़ा बताया करो, मैं तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा न्यूज़ आने दो, मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे पकड़ना है, राइट। परमजीत सिंह के जितने जो बंदा, अच्छा एक और भी यहाँ पे लॉज होते हैं विच कैन इंक्रीज द स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, या अभी वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उससे थोड़ा जरा परमजीत सिंह जैसे और निमिषा जलवानी जैसे लोग और ज़्यादा पकड़े जाएंगे, ठीक है। और गाइस, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय।